আমি আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি। আজকে না আমরা একটু মেকআপ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা যারা 50-60s বর্ন, আমার মনে হয় আমরা প্রচুর চেঞ্জেস দেখেছি। মানে একেবারে কিছু না থেকে একেবারে সরল স্বাভাবিক সাদাসিধে জীবন, যেখানে গ্যাজেট নেই, মানে আমাদের সময় টিভি ছিল না, মোবাইল ফোন টোন তো অনেক দূরের কথা, সেখানে আজকে আমরা একদম ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে বসবাস করছি। এই যে একটা বিশাল পরিবর্তন, তো সেটা এই নয় যে শুধু গ্যাজেটের ক্ষেত্রে, আমাদের জীবনযাত্রাতেও কিন্তু প্রচুর পরিবর্তন এসে গেছে। যেমন আমার ঠাকুমা, আমার মনে আছে, ওনার সাজগোজ মানে হচ্ছে উনি পান খেয়ে ঠোঁটটা লাল করতেন আর খুব সুন্দর সিঁদুর আর সিঁদুরের টিপ পরতেন, আর অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। মানে ওনাকে সবাই ডাকতই রাঙা ঠাকুমা বলে, এত ফর্সা ছিলেন। আর ওই আট পৌরে সাদাসিধে করে শাড়ি পরতেন, এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা ছিলেন। তো ওনাদের হয়তো ওই সময় মানে মেকআপ ব্যাপারটা ওনারা জানতেন না, প্রয়োজনও ছিল না। তারপরে আমার মায়েদের সময় দেখেছি, ওই সময়ে যারা ফিল্মে কাজ করতেন, যারা হিরোইন, যারা সেলিব্রিটি, যারা মডেলিং করতেন, তারা বেশ ভালো মতো মেকআপ করতেন। বাট সাধারণ মহিলারা মেকআপ বলতে, আমার এখনো মনে আছে আমার মায়ের একটা লিপস্টিক ছিল লাইট পিঙ্ক কালার, তাও অফিসে তো কোনোদিন পরে যেতেন না। হয়তো কোনো বিয়ে বাড়ি গেলে, এরকম কোনো পার্টিতে গেলে একদম হালকা রং একটা, আগে সিঁদুরের টিপি পরতেন, পরে ওই যেগুলো সোয়েটের ভালো ভালো টিপ বেরিয়েছিল স্টিক, হ্যাঁ ওই টিপগুলো হয়তো পরতেন, আর সিঁদুর নর্মাল শাড়ি পরতেন। অ্যান্ড কম্প্যাক্টও তখন এতটা ছিল না, যেগুলোকে আমরা বলি ট্যাল্ক পাউডার, হোয়াইট কালার, সেগুলোতেই সব কিছু হয়ে যেত। অ্যান্ড শীতকালে ক্রিম ট্রিম লাগাতেন প্রয়োজন মতো। তারপরে আমরা একটু আবার শিখলাম আমাদের জন্য ফাউন্ডেশন, কম্প্যাক্ট, কাজল, আইলাইনার, এসব অল্প স্বল্প আমরা লিপস্টিক আলাদা আলাদা রঙের শুরু করেছিলাম, নেল পলিশ। বাট এখন এত ভ্যারাইটি মেকআপ, এত কোয়ালিটি মেকআপ, এত এক্সপেন্সিভ মেকআপ, এবং সত্যি মেকআপগুলো কিন্তু ভীষণ সুন্দরভাবে কাজ করে। মানে যেমন আমি তো এই মুহূর্তে একদমই মেকআপ করে নেই, নর্মাল বসে আছি, বাট আমি দেখেছি, আমার মেয়েকে দেখেছি, আমি আমার ওর বসে আরও মেয়েদের দেখেছি, স্পেশালি যারা কর্পোরেটে চাকরি করে, তারা কিন্তু ঠিক ওরকম মেকআপ করে না যেরকম আমরা করতাম। মানে আমাদের ছিল, হয় স্কুল কলেজে তো সেরকম মেকআপ ছিল না, বাট বিয়ে বাড়ি গেলে, কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে গেলে, কোনো নাচের প্রোগ্রামে গেলে মেকআপ করা। আর আমি যেহেতু নাচ করতাম, তখন আমাদের একটা লাউড মেকআপ, ওই মেকআপ ম্যান আসতো, আর সে একদম মানে ভীষণ লাউড একটা মেকআপ আমাদের স্টেজের জন্য করা হতো। বাট এখন প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান এবং জায়গা অনুযায়ী মেকআপ আলাদা। যেমন আমার মেয়ে যেহেতু জব করে, কর্পোরেটে আছে, ওরা একটা মেকআপ করে যাকে বলে নো মেকআপ লুক। মানে এমন মেকআপ করবে যেটা মেকআপ, ডেফিনেটলি মেকআপ করবে, এবং ভীষণ ভালো ভালো কোয়ালিটির, ভীষণ এক্সপেন্সিভ মেকআপ, যাতে দেখে মনে হবে যে খুব ন্যাচারাল, যে আপনি যেটা মেকআপ করেছেন সেটা ঠিক ওইভাবে বোঝা যাবে না, এবং সেটাই এখনকার ডেকোরাম, মানে এইভাবে মেনটেন করতে হবে। তো এখন এত রকম মেকআপ, মানে এখন আপনি যদি পার্লারেও যান, আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে কোথায় যাচ্ছেন, মানে সকালবেলা না রাত্রিবেলা, সেখানে কীরকম পাবলিক থাকবে, সেখানে কীরকম লাইটিং থাকবে, বা আপনি ড্রেস কী করছেন, এসব আমাদের সময় ছিলই না। আমরা মোটামুটি এক ধরনের মেকআপ করেই সব জায়গায় যেতাম, অথবা মেকআপ করতাম না। এখন এত রকম হচ্ছে, বিশেষ করে যেটা আমি বললাম, এই যে যত ভালো মেকআপ তত সেটা ন্যাচারাল লাগবে। মানে মেকআপ করেছেন, নিজেকে ভীষণ সুন্দর লাগছে, অথচ অনেকেই বুঝবেন না যে আপনি মেকআপ করে আছেন। তো চলুন দেখি সেই মেকআপ কিভাবে করে, সেটা একটু
আমার মেয়েকেই বলি, কারণ আমি তো ওরকম মেকআপ করতে জানি না, ও একটু করে দেখাক যে কেমন করে হয় সেই মেকআপটা, আমিও দেখি আপনাদের সঙ্গে। নমস্কার, আমি এসে গেছি আপনাদের ফেভারিট চ্যানেল নানা রঙের দিনগুলির সঙ্গে মলি। আর আজকে মা বলেছিল যে আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আমি রোজ যখন অফিস যাই তো একটা নো মেকআপ লুক দিয়ে আমি নিজেকে রেডি করি। তো এই নো মেকআপ লুকের ফান্ডাটা হচ্ছে যে আপনি যখন অফিস যাচ্ছেন তো you have to take some responsibility and you have to take some time to look presentable, right? In front of your colleagues, in front of your clients, look presentable. কিন্তু এত বেশি সময়ও ডেফিনেটলি আপনার নেওয়া উচিত না যে যখন আপনি ক্লায়েন্টের কাছে গিয়ে মিটিং করবে তখন ক্লায়েন্ট ভাবছে যে আপনি প্রেজেন্টেশনে কতটা টাইম লাগিয়েছেন আর মেকআপে কতটা টাইম লাগিয়েছেন। কেন কি এত মেকআপ করে গেলে মনে হবে যে আরে 1-1.5 ঘন্টা ধরে তো এই মেকআপই করে গেছে, তো কাজ কখন করেছে, রাইট? তো সকালবেলা এটা করতে আমাকে 5 থেকে 7 মিনিট লাগে। হয়তো আপনাকে বলে বলে আজকে যখন আমি করব হয়তো একটু বেশি সময় লাগবে, বাট আদারওয়াইজ জাস্ট লুক প্রেজেন্টেবল, হ্যাভ আ পার্সোনালিটি ইন ইয়োর মেকআপ, বাট একদম মানে জমজমাট করে যেমনি বিয়ে বাড়ি যাচ্ছি ওইভাবে মেকআপ রোজ করা একদম আমাদের উচিত না, স্কিনের জন্যও ভালো না, আর ইন জেনারেলও মানে সবাই দেখে ভাববে যে আরে এ তো মানে সারাদিন ধরে মেকআপই করে, ওই জিনিসটাও ভালো না। একটা মিডল গ্রাউন্ড ফাইন্ড করে ইউ হ্যাভ টু লুক ইন আ সার্টেন ওয়ে। লাস্ট টাইম আমার ভিডিও দেখে অনেক আপনারা বলেছিলেন যে আমাকে একটু বাংলায় কথা বলা উচিত, এই জন্যে আমি বাংলায় শুরু করছি। অ্যান্ড বাংলা ইজ মাই মাদার টাং, আই লাভ স্পিকিং ইন বেঙ্গলি, কিন্তু যখন আমি কিছু ভেবে বলি তখন ন্যাচারালি আমার ইংলিশ ইয়া হিন্দি বেশি আসে। বাংলা দিয়ে পুরো ভিডিওটা বাংলায় করতে গেলে আমাকে অনেকটা ভাবতে হবে আর ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তো সেই জন্যে আমি হয়তো মেকআপ করার সময় হিন্দি আর ইংলিশ বলবো, কিন্তু আপনারা এত করে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন সেই জন্য আমি স্টার্টিংয়ে একটু বাংলা আপনাদের জন্যে বলে দিলাম। তো চলুন আমরা শুরু করি এই লুকটাকে ক্রিয়েট করার জন্যে। মোটামুটি রোজ আমি এরকমই মানে এইভাবেই অফিস যাই। হয়তো একটু লিপস্টিকের শেড চেঞ্জ করি, কেন কি রোজ রোজ একই জিনিস দেখে আমি নিজেও বোর হয়ে যাবো, অন্যরা বোর হোক या না হোক। আরেকটা হচ্ছে যে নো মেকআপ লুকে হয়তো এতটা ড্রামাটিক আইজ হয় না, অবশ্য এর থেকে ড্রামাটিক আইজও আমি করি যখন আমি বিয়ে বাড়ি যাই বা পার্টিতে যাই, কিন্তু আমি অফিসেও মাঝে মাঝে এরকম লুক করে যাই সিম্পলি বিকজ আমার মনে হয় যে মেকআপটা আপনার পার্সোনালিটির সাথে ম্যাচ হওয়া উচিত। যদি আপনি এমন মেকআপ করলেন যে লোকেরা ভাবছে যে আরে এটা ঐন্দ্রিলা কি না, then that is not a successful makeup. So I am a little dramatic, I am a little quirky, তো আমি সেই জন্যে সেই জিনিসটা মাথায় রেখে নিজের মেকআপ লুকটা ক্রিয়েট করি আর আপনাদের আজকে সেই লুকটা আমি দেখাবো। রাইট, লেটস গেট স্টার্টেড। So step number 1 is always a good primer, and what that does is makes your skin really really smooth. So think of it like a smooth canvas ताकि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो। तो जितने भी फाइन लाइंस है, अगर आपको पिंपल्स के वजह से थोड़े से अनइवन स्किन है, प्राइमर इज द बेस्ट वे टू काइंड ऑफ टैकल दैट, राइट? प्राइमर एक और चीज़ बहुत अच्छा करता है, वो होता है कि अगर आप सारा दिन जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में, विच इज़ सबसे ज़्यादा टाइम दिन का काम करते हुए निकलता है मोस्ट ऑफ द डेज, तो प्राइमर के वजह से आपका मेकअप सेट रहता है, तो आपको हर 1-2 घंटे में वॉशरूम में जाके यू डोंट नीड टू रियली टच अप, राइट? दैट्स द यूज ऑफ अ प्राइमर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि व्हेन आई क्रॉस 30 मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके इन्वेस्ट करती हूँ गुड स्किन केयर में और मेकअप में थोड़ा सा कम, बिकॉज दोनों में अगर आप बहुत इन्वेस्ट करेंगे तो फिर सारी सैलरी वहीं चली जाएगी। तो इसीलिए इसके पहले मैं एक दूसरा प्राइमर यूज़ करती थी विच वॉज अ लॉट मोर एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 3 times द प्राइस, 3 गुना दाम था, बट काम इससे शायद थोड़ा ही बेहतर करता था, इसीलिए आई स्विच्ड टू दिस वन। आप जो भी प्राइमर यूज़ करें मेक श्योर दैट इट इज़ अ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर
ताकि जितने भी आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो बिकॉज अब मेरा 30 क्रॉस हो चुका है तो थोड़े थोड़े आपको बड़े बड़े ऐसे पोर्स, ये पिंपल की वजह से ऊपर नीचे जो भी है वो सब आपको दिखने लगेगा विद एज। मैं बहुत ज़्यादा, मे बी आई लाफ अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा स्माइल करती हूँ, बट मेरे लाफ लाइन्स भी काफ़ी दिखते हैं विदाउट मेकअप। तो समथिंग लाइक दिस रियली हेल्प्स। दिस इज फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड पैक, और पैक का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल आर्टिस्ट कॉस्मेटिक्स। इसकी बात मैं बाद में करूंगी, बट आई जस्ट वांटेड द फुल फॉर्म, इसलिए मैंने जल्दी से देख लिया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंपनी एंड आई हाईली रिकमेंड इट। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो स्टेप 1 फॉर एनी मेकअप आफ्टर योर स्किन केयर, आप मॉइस्चराइज करिए, प्राइम करिए, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। मुंह धोने के बाद मैं एक टोनर यूज करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है ऑन व्हाट टू डू फॉर गुड स्किन, बिकॉज एक ठीक है कि आप शायद जन्म के बाद एक अच्छी स्किन के लेके दैट्स लकी एंड अनलकी, बट थैंक्स टू द पोल्यूशन एंड द एनवायरमेंट आउटसाइड यू हैव टू डू अ लॉट वर्क। बहुत मेहनत करना पड़ता है एक अच्छा स्किन मेंटेन करने में। ओके, सो with that, I think primer comes in skincare. I don't think primer comes in makeup. That's how good a primer is. Okay, always use a good primer. So what I do is take a very small amount, और पूरे फेस पे मैं नहीं लगाती, बिकॉज आप जितना लेयर्स आप अपने चेहरे पे बढ़ाते जाएंगे उतना वो बहुत ज्यादा केकी और लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया। तो बहुत ज्यादा लेयर्स वगैरह नहीं लगाना है, जहां जरूरत है वहीं पे मेकअप करना है। दैट्स वाई द नो मेकअप लुक, राइट। जहां जरूरत है वहीं मेकअप लगाइए, जहां आपका स्किन डिसेंट है वहां मेकअप लगा के कोई मतलब नहीं है, मत लगाइए। ऑफकोर्स अगर आप शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो बात अलग है, दैट्स अ डिफरेंट लुक ऑल टुगेदर। उसके लिए चीजें भी अलग यूज होती है, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, या बाकी कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल नो मेकअप लुक विच आई जनरली यूज फॉर ऑफिस जाते वक्त मैं ये करती हूँ। तो मैं प्राइमर लेती हूँ, और जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है मैं सिर्फ वहां यूज करती हूँ। ये पहली बार है कि मैं मिरर की जगह फोन पे देख के अपना मेकअप करूंगी, सो प्लीज बेयर विथ मी। आई एम गोना यूज इट अंडर माई आईज, बिकॉज यहाँ पे थोड़े बहुत, वाह, ओके, आई हैव सम लाइफ, ओके, आई हैव सम आई गूप, दैट्स जस्ट लाइफ, ठीक है। सो आई एम गोना टेक इट एंड पुट इट अंडर द आईज, जहाँ पे मेरे 30 के बाद मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा फाइन लाइंस आना शुरू हो गया है, तो मैं डेफिनेटली वहां लगाऊंगी। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि मेरे लाफ लाइंस बहुत डिस्टिंक्ट है। मुझे लगता है कि जो लोग ज्यादा बातें करते हैं या बहुत ज्यादा हंसते, शायद उनका होता होगा, जो सीरियस लोग हैं शायद उतना नहीं होता होगा, पता नहीं, मुझे तो है। तो मैं यहाँ लगाती हूँ थोड़ा बहुत मेरे चीक्स पे, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि पिंपल्स अगर आपको आते हैं, मुझे खैर बहुत सारे नहीं आते, बट मैं अभी एक नई जगह शिफ्ट हुई हूँ। बॉम्बे में तो मुझे बिल्कुल पिंपल्स नहीं आते थे, बट बैंगलोर आने के बाद मैं देख रही हूँ कि मम्मी हेल्प, काफी सारी जगह है, तो मैं वहां लगाती हूँ। और लास्ट बिट मैं थोड़ा सा यहाँ लगाती हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा जब आप एक्सप्रेशंस देते हैं बात करते वक्त, जैसे कि मैं देती हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप ऐसे करें तो थोड़ा बहुत फाइन लाइंस वहां आता है, तो मैंने वहां लगा दिया है एंड आई एम डन। उसको अच्छे से थोड़ा सा, प्राइमर हमेशा मुझे लगता है हाथ से लगाना चाहिए, बिकॉज यू वार्म द प्रोडक्ट विथ योर हैंड्स। ओके, थोड़ा सा वार्मथ की वजह से वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है आपके स्किन में। तो मुझे नहीं लगता, आई मीन मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, मैंने ब्रश ट्राई किया है, स्पंज ट्राई किया है, ब्रश ट्राई किया है, बट मुझे लगता है प्राइमर के लिए हैंड्स आर द बेस्ट। स्टेप 2, फाउंडेशन। मेरे पास फाउंडेशन का बहुत सारा कलेक्शन है, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि मैं बहुत सारा मेकअप खरीदती हूँ, कुछ यूज़ करती हूँ, कुछ रियलाइज़ करती हूँ मेरी स्किन के लिए नहीं है तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है कि आपके स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, मच्योर स्किन है, यंग स्किन है, एक्ने प्रोन है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इफ़ यू नो कि आपका स्किन टाइप क्या है और आपको जानना है कि आपको किस तरह का फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, आप कमेंट पे छोड़ दीजिए, मैं कमेंट पढ़ के रिप्लाई करूंगी कि आपको किस तरह का फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। मेरे लिए दिस इज अ स्टिक फाउंडेशन, दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी, ड्राई स्किन एंड मच्योरिंग
skin. I'm just 30, okay? So I don't think it's mature skin. It's going towards aging gracefully. Okay, so this is what I use. Now the trick here is कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ और इसकी जगह मैं कंसीलर से भी काम चला सकती हूँ. तो मेरे पास बहुत सारे कंसीलर्स भी है, काफी सारे हैं, राइट? तो आज मैं जो करने वाली हूँ, और ज्यादातर अभी बिकॉज वर्क फ्रॉम होम से हम काम कर रहे हैं, तो मेकअप मैं पूरा फाउंडेशन नहीं लगाती. अभी लिटरली लास्ट में ऑफिस गई थी मार्च 2020, तो ये मैंने लास्ट तभी यूज किया है, उसके बाद एज सच यूज नहीं किया है. घर पे मैं कंसीलर्स से काम चलाती हूँ, बहुत सारे कंसीलर्स से काम चलाती हूँ. तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको दिखाऊं कि मिनिमलिस्टिक मेकअप सबसे कम चीजें यूज करके कैसे हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं लूंगी मेरे स्किन से मैच करता हुआ जो कलर है, ताकि जहां जहां मुझे लगता है कि आई जस्ट नीड टू मेक श्योर इट लुक्स इवन, राइट? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू यूज दिस. अगेन, आई हैव नेवर रियली done this on camera, so bear with me. I don't know what I am doing. और यहाँ पे जो लोग बहुत गोरे हैं शायद उनको यहाँ पे कंसीलर लगाना जरूरी नहीं है, बट इंडियन स्किन को जरूरी है. अगर इफ यू वांट योर आई शेडो, अगर आप चाहते हैं कि आपका आई शेडो का कलर दिखे, तो फिर आपको समथिंग लाइक दिस करना पड़ेगा. डैम्प स्पंज, ये एक स्पंज है जिसको मैंने पानी में थोड़ा सा भिगाया है, तो उसका साइज बढ़ गया है. और फिर मैंने उसको सारा पानी, ओह थोड़ा बहुत निकल रहा है सारा पानी निकाल लिया है, और अब मैं इसको यूज करने वाली हूँ. और बस मैं उसको डैब 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 कर रही हूँ ताकि वो मेरी स्किन के साथ ब्लेंड हो जाए. अगर आप ऐसे वाले स्ट्रोक्स करेंगे तो आपकी जो भी इम्परफेक्शंस है स्किन के, वो और उभर के आएंगी. तो आपको डैब करना है और ना कि, आई डोंट इवन नो अदर मोशन इज कॉल्ड, ब्रश नहीं करना है, डैब करते हुए. तो जहां जहां मुझे लगा कि थोड़ा सा पिंपल की वजह से कोई स्पॉट्स है, वहां पे मैं कर रही हूँ. ये अगेन आई सेड आपके आई शेडो के लिए this is a good thing to do, and that's what I'm doing. Okay. Okay. Now what I'm going to do is take a concealer that is one shade darker than your skin tone. आप जो शेड का फाउंडेशन लगाते हैं उससे एक शेड डार्क कंसीलर आपको लेना है. मैंने थोड़ा सा अपने हाथ में, बहुत थोड़ा सा लिया है, और जहां जहां मुझे यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट है जो काफी स्टबर्न है, मेरे लिप्स के नीचे भी देयर इज अ सर्टेन पिगमेंटेशन. मुझे लग रहा है मैं पहली बार कैमरा में या सोशल मीडिया पे आई हूँ विदाउट मेकअप, सो आई एम अ लिटिल बट ठीक है, सच इज लाइफ. ओके, एंड आई थिंक दैट्स शुड बी. थोड़ा बहुत जो हाथ में रह गया है उसको मैं ये डैम्प स्पंज से उठाऊंगी और अच्छे से तो मैं जो पूरा प्रोसेस करूंगी, मुझे रोज ऑफिस के पहले करने में शायद 5 से 7 मिनट लगता है, क्योंकि मैं आज बात करते करते कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट ठीक है. आई थिंक वी आर गुड टू गो. ओके, नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस इज माय फेवरेट स्टेप. आपका फाउंडेशन से एक शेड लाइट जाना है आपको. पहले आपने आपके फाउंडेशन शेड का कंसीलर यूज किया, फिर आपने एक शेड डार्क यूज किया ताकि आपके जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह है वो हाइड कर सके. अब हम डार्क सर्कल्स को या डार्क स्पॉट्स को लाइट कंसीलर के साथ क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट कंप्लीटली निगेट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. आपका डार्क सर्कल विल बी लाइक ब्राउन पर्पल
टिंज रहेगा, उस पर आप जब ये लाइट करेंगे तो एक ग्रे इफेक्ट आएगा, आपका डार्क स्पॉट्स नहीं हाइड हो पाएगा. तो यू यूज वन शेड डार्कर टू हाइड इट, right? And then blend it well. I don't think it's blended well yet. Okay, now it is. And then एक शेड लाइट, जहां जहां आपको आपके फेस को ब्राइटन करना है वहां आपको ये यूज करना है. तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड स्पॉट, योर नोज इज अ गुड स्पॉट, चिन, क्यूपिड्स बो. अभी मैंने यहाँ पे डार्क कंसीलर यूज़ किया था, उसी के ऊपर मैं ये कर रही हूँ ताकि जैसे अभी मेरा काफ़ी टायर्ड दिख रहा है बिकॉज पूरे दिन मैंने ऑफिस किया और उसके बाद मैंने डिनर विनर करके, क्योंकि काफ़ी लेट ऑफिस खत्म हुआ और अब मैं काफ़ी रात को ये कर रही हूँ, तो आई हैव टायर्ड आईज, तो उसके लिए टू ब्राइटन इट अप. या एंड देन आई लाइक टू डू दिस. ओके, दिस इज माई ओन थिंग. आई जस्ट रियलाइज दिस वर्क्स फॉर मी बिकॉज जो मेरे जैसे थोड़े खाते पीते घर के हैं, तो हम कॉन्टोर तो नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा मेकअप करना है नहीं, बट हम ब्रॉन्जर से उसको थोड़ा सा स्कल्प्ट करेंगे. तो दिस एक्चुअली हेल्प्स बिकॉज आप यहाँ पे ब्रॉन्जर लगाएंगे, यहाँ पे ब्रॉन्जर लगाएंगे, तो बीच में ये ब्राइट होता है तो बहुत अच्छा दिखता है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक किया है. दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई ट्राइड एंड इट लुक्स गुड ऑन माई फेस, एंड सो दिस इज माई Oindrilla special tip to you. Try this, okay? It really brings a lot of definition to your face. And again, damp sponge. Okay, good to go. Yeah, okay, decent. Next is to set the concealer. तो मैंने थोड़ा सा लूज पाउडर डैब, सो जहां जहां आपने कंसीलर लगाया है आप उसको सेट कर लीजिए ताकि बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स नहीं आए. अगेन मैं सिर्फ सेट करने का काम करी, मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करना चाह रही, तो इसीलिए मैं ये न्यूट्रल टोन के लिए गई हूँ और मैंने बनाना पाउडर नहीं यूज़ किया है. ओके, आई थिंक आई एम गुड टू गो. ओके, क्योंकि मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है और मैंने कंसीलर काफ़ी जगह चेहरे पे लगाया, तो आई एम गोना टेक अ प्रेस्ड पाउडर. दिस इज़ बाय मैक, काफ़ी पुराना है, मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से. एंड आई हिट पैन, ख़त्म होने को आया है. एंड आई टेक अ वेरी फ्लफी ब्रश. दिस इज़ बाय एल्फ एंड इट्स कॉल्ड फ्लॉलेस फेस. सो आई एम गोना टेक दिस ब्रश, dab the excess and just buff the entire face, everywhere, just everywhere. Don't forget to do your neck, it's important. And almost done. Okay, मुझे लग रहा है कि अब मैं अपना आईज करूंगी पहले. ये बेसिकली मेकअप के वक्त अगर आपका बार बार बाल आने लगे तो इट्स वेरी इरिटेटिंग. तो मैंने ये क्यूट सा एक हेडबैंड अमेजोन से खरीदा और मैं ये पहन रही हूँ. आप कोई भी हेयर बैंड यूज कर सकते हैं, मुझे बस फैंसी चीज़ों पे पैसे खर्चना अच्छा लगता है. ऐसे मेरी माँ कहती थी कि मतलब तुम्हें तो बस पैसे खर्चने, तो मैंने ऐसा कुछ एक खरीद लिया है. और अब जब से शादी हुई है तो माँ की जगह पति सेम चीज़ बोलता है कि बस पैसे खर्चने, तो मैंने ये खरीदा. आप कोई भी बेसिक हेडबैंड यूज करिए, इट विल स्टिल वर्क. नेक्स्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू, आईब्रोज. पहले इस साइड से ब्रश, ऑलवेज ब्रश अप
and then side, and then take off the excess and अब ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि आपने मेकअप किया है, राइट? तो इसका सोल्यूशन है, मैं बार बार अपने आप को देखती रहती हूँ, मुझे कैमरा को देखना है, आई एम सॉरी। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि आपने मेकअप किया है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये साइड ऑफ द ब्रश को लेना है और आपको ऐसे स्ट्रोक्स करने हैं। तो व्हाट दैट डज इज मेक इट लुक एक्सट्रीमली हेयर लाइक। तो उतना नहीं ऑब्वियस होता कि आपने मेकअप किया है। जैसे आपके हेयर्स है उसी को आपको कोम्ब करते रहना है, ऑटोमेटिकली ये लाइट होते जाएगा और आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। सो वन ऑफ देम इज डन। आई थिंक इट लुक्स प्रीटी ओके। सी, लग ही नहीं रहा है, काफ़ी हेयर्स दिख रहे हैं आपको, तो इट्स गुड। अभी इसी को सेकंड करना है। तो मैंने ये कहीं पे सुना था कि आईब्रोज आर लाइक सिस्टर्स बट नॉट ट्विंस। तो इसका फंडा ये है कि दोनों आईब्रोज आपके कभी भी सेम दिख ही नहीं सकते, और अगर आपने बाई चांस बहुत मेहनत करके दोनों आईब्रोज को सेम कर भी लिया तो आपका फेस बहुत अजीब दिखेगा, बिकॉज कोई भी फेस सिमेट्रिकल नहीं होता। अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करूं, ये एग्जैक्ट सिमेट्री किसी का फेस नहीं होता है, एसिमेट्रिकल होता है, दिस साइड एंड दिस साइड। अगर आप अपने फेस को हाफ डिवाइड करें तो आपके आईब्रोज सिमिलर दिखने चाहिए बट सेम नहीं दिखने चाहिए। सेम तो बहुत वियर्ड दिखता है कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है। तो यू हैव टू लुक एफर्टलेस इन योर मेकअप, राइट? सो मेक देम लुक सिमिलर। सो फॉलो योर नेचुरल आईब्रो। मेरा भी जैसे आप दोनों, ये वाला थोड़ा सा नीचे है, ये वाला थोड़ा ऊपर है, रहने दीजिए। फॉलो योर नेचुरल आईब्रो and define it better, add definition to it, but don't try and change the look of your eyebrows. I think that's one of the biggest mistakes in makeup that people make. Don't do it. ये वाला देखिए काफी नेचुरल लग रहा है, ये वाला काफी मेड अप लग रहा है, बिकॉज अभी तक मैंने इसको ब्रश नहीं किया है। दैट इज वाई दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक कि आफ्टर यू डू योर आईब्रोज ऑलवेज यूज दिस एंड ऑफ द ब्रश एंड फ्लिक इट, ताकि वो आपका नेचुरल लुक आ जाए। Okay, I think we're good to go. How does it look? थोड़ा सा और फ्लिक कर सकते हैं। या आई थिंक देयर गुड टू गो। एक बार जब आपका पूरा लुक हो जाए तब भी आपको समझ में आता है कि इफ यू नीड टू अप और गो डाउन ऑन योर मेकअप, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे, सो दैट इज डन। नेक्स्ट इज आई शैडो। आई हैव रिसेंटली been introduced to K Beauty. This is a beauty brand by Katrina Kaif. उनकी एक्टिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मुझे उनका प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद आ रहा है। मेकअप रेंज इज प्रीटी गुड। नो मेकअप लुक में अगर आप सब कुछ न्यूड यूज करेंगे तो आप बहुत ही फीके लगेंगे इन अ वे, राइट? तो यू हैव टू यूज न्यूड पिंक्स, न्यूड पीचेस। आपको समझना पड़ेगा कि आप सबसे ज़्यादा किस में अच्छे लगते हैं। जस्ट बिकॉज नो मेकअप लुक में सब न्यूड यूज करते तो आप नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हम अमेरिकन जितने गोरे हैं नहीं। तो हमें हमारा स्किन टोन समझ के काम करना पड़ेगा। सो आई रियली लाइक दिस, एंड व्हाट आई डू इज देन आई यूज माय फिंगर, very easy. Use my finger. Flick it a little. Okay. And then what I do is take the same thing and just again, it's a cream based product, so use your finger and yeah, I think we're doing okay so far.
थोड़ा सा अजीब है मिरर में ना देख के कैमरा में देख के करना, बट ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई डू. इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस. आई लव इट. इट्स इजी. And this is Maybelline Colossal, so this is a drugstore one, and that's the one that I'm going to use. अब ये वाला पता नहीं मैं कैमरा में कितना अच्छा कर पाऊंगी, because I'm used to doing it in front of a mirror. It is not easy. कैमरा में देख के मेकअप करना आसान नहीं. Okay, you know what? मैं अपना eyes quickly मिरर के सामने करके वापस आ रही हूँ because this is not easy. Okay, I am back. So this is my favorite kajal. It's Maybelline, and I tend to stick to black as a color. I have quite a few options, but I stick to black. But my tip, and which is why I have a white kajal with me, is जैसे मेरी आँखें मुझे लगता है काफ़ी decent size है, तो मैं ब्लैक पे स्टिक करूंगी. बट अगर आपकी आंखें थोड़ी सी छोटी हैं, कंसिडरिंग योर फेस रेशियो, अगर आप देखें आई टू फेस रेशियो, अगर आपको लगता है आपकी आंखें छोटी है, तो आपको ये वाइट काजल लेना है और ये लोअर लैश लाइन पे लगाना है. उससे क्या होता है, आपकी आंखें एकदम से इल्यूजन, मेकअप इज ऑल अबाउट इल्यूजन, तो सडनली आपकी आंखें बहुत बड़ी लगती हैं. ठीक है, मैं अगर ये वाइट लगाऊं, मैंने ट्राई करने के लिए ही खरीदा था ऑनेस्टली, पर मैं अगर वाइट लगाऊं तो मेरी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी और अजीब लगती है, तो मैं ये वाइट वाला नया का नया नहीं यूज करती हूँ. आई जस्ट ट्राइड इट, 1 या 2 दिन ट्राई किया था, नहीं सूट किया, तो आई एम गोइंग टू स्टिक टू द ब्लैक वन. बट दैट्स अ गुड टिप फ्रॉम मी कि अगर आपकी आंखें छोटी हैं, इफ यू वांट इट टू लुक बिग एंड ओपन, white kajal is for you. Alright, so I'm done with my kajal. वापस मैं थोड़ा सा अपने मिरर के पास चली गई बिकॉज कैमरा में ये करना थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए. बट येस, आई एम डन. नाउ अगर मैं पार्टी वगैरह में जा रही होती तो मैं अपने आई लैशेस कर्ल करती और फिर आई लैश प्राइमर लगाती और फिर मस्कारा लगाती. बट क्योंकि ये एवरीडे लुक है तो इसमें से कुछ नहीं करूंगी मैं. सॉरी, किसी और दिन बताऊंगी कि अगर मुझे पार्टी में जाना होता है या शादी में जाना है तो मैं क्या लुक करती हूँ और क्या क्या यूज करती हूँ. बट आज के लिए इट्स अ स्मॉल वीडियो. या सो दैट इज प्रीटी मच माई आईज. दिस इज हाउ इट लुक्स. आई थिंक इट लुक्स प्रीटी नाइस इफ यू आस्क मी. नेक्स्ट स्टेप, माई मोस्ट फेवरेट स्टेप फॉर chubby girls like me. This step is for you. It's called using a bronzer. Bronzer के लिए मैं 2 तरह का ब्रश यूज करती हूँ. पहले मैं ये वाला ब्रश लूंगी. This bronzer smells very good, almost like I am in Hawaii. ठीक है, तो ये वाला ब्रॉन्जर लेती हूँ मैं and make a fish face. It's almost like making a 3 on both sides of your face. So this bronzer is a good step. अगर आपके पास चबी चीक्स है उसको कट करता है, अगर आपके पास डबल चिन है उसको कट करता है, और अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है, जो कि मेरा है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जोक करती रहती हूँ कि मेरा 4 हेड नहीं 5 हेड है क्योंकि वो काफी चौड़ा है, तो ये 4 हेड को भी अच्छे से इल्यूजन करके छोटा कर देता है. सो आई हैव जस्ट ड्रॉन अ 3. सेम चीज मैं दूसरे साइड पे करूंगी.
फिर मैं ये वाला ब्रश लेती हूँ और मैं ब्रॉन्जर को ऐसे लगाती हूँ उस पर, एक्सेस टैप। और तो अगर आपका नाक चौड़ा है, इससे आप उसको एक डेफिनेशन दे सकते हैं। ऑलमोस्ट डन। लिटिल फ्लफी ब्रश। Blush is very important because it is literally the only bright color on your face. So I do this. तो अगर आप देख रहे होंगे मैं काफी सारा ब्लश लगा रही हूं। एंड ये अगेन ये मेरा ट्रिक है जो मैंने अपने आप डिस्कवर किया है कि मेरे फेस पे ये बहुत सूट करता है कि पहले आप बहुत सारा लगाओ, जरूरत से ज्यादा ब्लश लगाओ, इतना जरूरी नहीं है पर लगाओ, और उसके बाद आपका जो डैम्प स्मज है जो कि काफी गीला है उसको लो, ओके, एंड जो एक्सेस ब्लश है वो आपके स्पंज से निकल जाएगा। तो उतना ही रहेगा जितना आपके चेहरे को जरूरत है। आप जितना करोगे उतना वो कम होते जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि आपका स्किन नेचुरली फ्लश्ड है, एंड दैट इज द इफेक्ट दैट ब्लश गिव्स थ्रू मेकअप। सो दिस इज टू मेक इट एक्सट्रीमली नेचुरल लुकिंग एंड नॉट लाइक आपने बहुत सारा ब्लश थोपा है। तो विच इज वाई एंड नेचुरल लुकिंग, क्वाइट काफी नेचुरल दिख रहा है, मुझे तो पसंद आ रहा है। आप लोग बताइए आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप कुछ अलग करते हैं जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप वो भी कमेंट्स पे छोड़ सकते हैं ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। ओके, सेकेंड लास्ट स्टेप। तो सबसे पहले मैं एक छोटू ब्रश लेती हूँ ऐसा जो कि काफी डेंस और कॉम्पैक्ट है, हाइलाइटर पे लगाती हूँ और इससे एकदम से आपके चेहरे पे थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाती है जो कि अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स के लिए काफी जरूरी हो जाती है। तो दैट इज व्हाई आई डू दिस, एंड आई ऑल्सो डू, ताकि आपका जो ब्राउ बोन है, यहाँ पे एक हड्डी है, थोड़ा सा अगेन प्लेइंग विथ shadows and lights for some definition. Then I take this brush and I take this, whoops, and तो इसका फंडा ये है, हाइलाइटर आपको हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस पे लगाना है ताकि जब सनलाइट आपको हिट करे, जहां जहां वो ब्राइटन अप करेगा, आप हाइलाइटर वहीं पे लगाइए, सब जगह लगा के। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि यहां हाइलाइटर लगाते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। अगर सन आपके चेहरे पे पड़े तो यहां पे वो फ्लैश नहीं होगा, वो यहां पे फ्लैश होगा, विच आर योर हाई पॉइंट्स राइट अबव योर आईब्रो आर्क। तो मैं हल्का सा यहां पे एक इफेक्ट देती हूं। अगेन इट्स अ नो मेकअप लुक, तो बेस्ट फ्रेंड ऑलमोस्ट डन। फेवरेट पार्ट, लिपस्टिक। और ये सारे सिर्फ ऑफिस वेयर है। आई एम नॉट इंक्लूडिंग रेड, मरून, डार्क ब्राउन। मैं बहुत सारे कलर्स लगाती हूँ जो पार्टीज वगैरह के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये सिर्फ ऑफिस के लिए इतने सारे हैं। एंड आई एम जस्ट
सो ये सारे काफ़ी सिमिलर है बट काफ़ी अलग लुक्स देते हैं. यूजुअली मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करती हूँ बिकॉज मुझे पसंद है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ स्क्रिप्टेड. इसके पहले आप लिप लाइनर चूज कर लीजिए. तो मैं सारों के लिए अलग अलग लिप लाइनर्स नहीं खरीदती. बजट फ्रेंडली मेकअप, अगर आप रोज मेकअप यूज कर रहे हैं तो बजट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है. मैनेज, जुगाड़. इंडिया में हम जुगाड़ बहुत करते हैं, मेकअप में भी जुगाड़. राइट, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस टुडे. मैं हल्का सा ओवरलाइन करती हूँ ताकि थोड़ा सा लिप प्रोमिनेंट हो फेस पे. ओवरलाइन में बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है. आप प्रैक्टिस करते रहिए, इट विल हैपन. जस्ट लाइक मैथ और ड्राइंग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स. वही वाला फंडा है, ठीक है. एंड आई एम स्टार्टिंग विद स्क्रिप्टेड. आई रियली लाइक इट. सो दिस इज वेरी वेरी न्यूड. मुझे हमेशा सिर्फ न्यूड लगाना अच्छा नहीं लगता है. आई फील कि मेरे स्किन, मतलब मेरा ओवरऑल लुक के हिसाब से थोड़ा सा मैं ब्राइट करना चाहूँगी. सो आई एम मिक्सिंग इट अगेन. दिस इज के ब्यूटी. अब देख रहे हैं मैंने बस हल्का सा पिंक ऐड किया है इस न्यूड में. think I'm pretty done. लास्ट स्टेप बहुत जरूरी है, मेकअप फिक्सर. ओके, व्हाट दिस डज इज जस्ट, आपने इतनी मेहनत से जो भी मेकअप किया है, ये करने में मुझे सुबह ऑनेस्टली 5 से 7 मिनट लगता है. आज तो मैं इतना बकबक कर रही थी तो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है. आपको ये स्प्रे करना है ताकि आपका मेकअप पूरा दिन ऐसे ही रहे. और जिस तरह से आप अपने बाल को स्टाइल करना चाहें. मेरे बाल हल्के से गीले हैं तो बहुत ज़्यादा मैं अभी कुछ करूँगी नहीं. बट या, दिस इज़ हाउ आई लुक व्हेन आई गो टू वर्क एवरी डे. एंड आई होप आपको पसंद आ रहा है. और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा. मैं उसको पढ़ूंगी, उसका जवाब दूंगी. अगर आपके पास कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे मैं अपना लुक इम्प्रूव कर सकती हूँ, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू. दैट्स इट. होप यू रियली लाइक इट. দেখলেন আপনারা, ওয়াও, সত্যি মানে সময়ও লাগবে, ধৈর্য লাগবে, প্রচুর ভালো ভালো জিনিস লাগবে, এবং তার সঙ্গে আপনার ওই করতে করতে একটা এক্সপার্ট ব্যাপার এসে যাবে. ঠিক এইভাবেই আইব্রো হবে, ঠিক এইভাবেই চোখ আঁকা হবে, লিপস্টিকের লাইনিং এরকম হবে, মানে খুব ডিটেলে. অ্যাকচুয়ালি ওরা না, আজকালকার ছেলেমেয়েরা আমাদের থেকে অনেক স্মার্ট. আর একটা সময় ছিল যে ছোটরা বড়দের থেকে শিখতো, ডেফিনেটলি. বাট আমার মনে হয় ছোটদের থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে. যেমন আজকে আমিও এত মন দিয়ে কোনোদিন দেখিনি যে ও কিভাবে করে. তো ইটস রিয়েলি, আমার মনে হয় আমাদেরও অনেক কিছু শেখার আছে. তবে জানি না, আমরা তো এখন আর চাকরি বাকরি করতে যাবো না, তো হয়তো অতটা শিখবো না. বাট যারা ইয়াং, যারা ছোট, এখন বড় হচ্ছে, আগে যাবে, তাদের জন্য আমার মনে হয় এটা কাজে লাগবে. এনিওয়ে, আজকে এই পর্যন্তই. নানা রঙের দিনগুলি সঙ্গে বলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে করে নেবেন. আর কমেন্ট তো
করবেনই, যেটা আমি সবসময় বলি যে আপনাদের কমেন্ট পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে, আর আমি নতুন এনার্জি পাই, আর নতুন এনার্জি নিয়ে আবার আপনাদের সামনে এসে যাই। আজ এই পর্যন্তই, নমস্কার।